Namaskar students, welcome to D&S Education. My name is Saurabh Singh. In this video, I am going to discuss about number system, that is chapter 1 of ninth class. Before discussing about number system, we are going to discuss each and every number system in detail. I will start from scratch. So let's start. First number we have natural numbers. Basically, natural numbers are known as counting numbers. So, counting numbers, that is 1, 2, 3, 4, 5, these are called natural number, and natural number is represented by n. Remember, whenever we have capital N, means that capital N represent natural number. Now, if we talk about the smallest natural number, then 1 is the smallest natural number. Now, if I ask which is the greatest smallest number, now we cannot define greatest smallest number because numbers are countless and it goes to infinity. Next is whole numbers. Okay, when we add 0 in natural numbers, then the collection of numbers is known as whole number, and whole number is represented by W. Now, if from this whole number I ask one question, which is the smallest whole number, then we know 0 is the smallest whole number. Now, if I ask which is the greatest whole number, then again we cannot define greatest whole number as numbers are countless. Now, moving on, we will talk about prime numbers. Prime numbers are basically all natural numbers that have 1 and itself only as their factors. Means any number that have only two factors, or you can say in simple language that any number that is exactly divisible by either one exactly divisible by 1 and themselves. Themselves means number itself, and prime number is represented by P. Now, if we talk about examples of prime number, these are 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, and so on. All of these are prime numbers. Now, if from this prime number, if I ask which is the smallest prime number, now 2 is the smallest prime number. Remember, 2 is the only even prime number. Rest of other prime numbers are odd. Next is composite numbers. Now, composite numbers are numbers that have more than two factors. If a number has more than two factors, then it is known as composite number. Now, all natural numbers that are not prime are composite number. But here we have an exception. And what is that exception? 1. 1 is a natural number, but it is not prime. It is neither prime nor composite number. It is a unique number. Remember this point very carefully. 1 is neither prime nor composite number. It is an unique number. Okay, if we talk about examples of composite number, then it is 4, 6, 9, 15, 16. These all are the examples of composite number. Now from this, if I ask which is the smallest composite number, now which is the smallest composite number? The smallest composite number is 4, but that is even number. If I ask you which is the smallest odd composite number, can you answer that? If you know about that, then write in the comment box. Now we have co-prime numbers, or co-prime numbers is also known as relatively prime numbers. What are they now? Okay, a pair of numbers that have exactly one common, one common factor, and that is 1. Means a pair of number not having any common factor. Any two consecutive numbers are called co-prime numbers, or you can say any two consecutive numbers are always co-prime. Remember,
Now, if we talk about another definition of co-prime numbers, then what can be it? Okay, let me show you. If HCF of the given numbers, we are talking about any two numbers, is 1, then that numbers are known as co-prime numbers. So if we talk about any example, 4 and 9. Now 4 and 9 are co-prime number because their HCF is 4 and 9 of HCF 4 of 9, HCF of 4 and 9 is 1. Any two consecutive number, here it is also written as any two consecutive numbers are always prime co-prime number. Now if a number is co-prime numbers, then it not be a prime number. मतलब अगर कोई को प्राइम नंबर है तो उसके लिए प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट टू नंबर्स दैट इज 5 एंड 6. अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 5 और 6 में, यहाँ 5 तो एक प्राइम नंबर है लेकिन 6 क्या है, कंपोजिट नंबर. नाउ अगेन वी टॉक अबाउट 8 एंड 9. इन दोनों ही नंबर्स में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है लेकिन फिर भी ये को प्राइम नंबर्स हैं. ओके, तो को प्राइम नंबर होने के लिए प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट नंबर इज प्राइम टू बी अ को प्राइम नंबर. Okay, moving on. Now we will talk about integers. Okay, before I explain about integers, let me ask you one question. Suppose one of your friend has borrowed 100 rupees from yours. Now he he returns only 50 rupees. आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी फ्रेंड ने आपसे 100 रुपीज बोरो किया और 100 रुपीज बोरो करने का उसने सिर्फ आपको 50 रुपीज रिटर्न किया. तो आपको कितने रुपीज का लॉस हुआ? -50 रुपीज का. हम लोग बोल सकते हैं कि आपको -50 रुपीज का लॉस हुआ. अब ऐसा तो नहीं है कि -50 रुपीज का कोई नोट मार्केट में होता है, बट उसको हम लोग नेगेटिव में शो करते हैं. तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने इंटीजर्स का यूज करना स्टार्ट किया. या फिर अगर टेम्परेचर की बात करें, सपोज कि कहीं पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, बिलो द 0 डिग्री सेल्सियस, इन दैट केस वी ऑल्सो यूज इंटीजर्स. ओके, मूविंग ऑन, वी the definition of integers is that the collection of whole numbers together with the negative of counting number. Now remember, counting numbers are prime numbers, so the collection of whole numbers together with negative of counting numbers is called integer, and integer is represented by z. Now if we talk about some example of integers, then that is -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 and so on. These all are integers. Now again two questions come from this integer, that is which is the smallest integer and which is the greatest integer. Can you tell about that? Okay, we cannot define the smallest integer and greatest integer because the range of, or we can say the limit of integer is -infinity to +infinity, means number goes uh, endless in both directions. So we cannot describe, or we cannot tell, or we cannot define the smallest integer or greatest integer. Now let me show you one diagram. Now from this diagram we are representing integers. Now in integer we have whole numbers and natural number. Now from this diagram you have to remember 2 points, that all natural number are integer, next all whole numbers are integers. Remember these 2 points very carefully. जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे इंटीजर्स हैं और जितने भी होल नंबर हैं वो भी सारे इंटीजर है. लेकिन अगर इससे हम बैकवर्ड डायरेक्शन में हैं, तो अगर ऐसा बोले कि क्या सारे इंटीजर होल नंबर होंगे, होंगे क्या? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है. बिकॉज अगर हम लोग देखें कि ये -4, -3, -2, माइनस जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, तो ये तो होल नंबर हो ही नहीं सकते हैं. इस कारण से all integers are not whole numbers, and this same implies for natural numbers. All integers are not natural numbers.
आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 1 2 3 4 है, ये तो ये जो नेचुरल नंबर ये तो चलो इंटीजर में आ जाएंगे, लेकिन इनका क्या, ये जीरो इधर नेगेटिव में, ये वैल्यू नेचुरल नंबर में नहीं आएगी। तो आपको इस डायग्राम को याद रखना है, डायग्राम का यूज करना है। कुछ क्वेश्चंस भी है, आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस डायग्राम से। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, वी हैव फ्रैक्शंस। ओके, any numbers that can be expressed in the form of a upon b. Now, what is a and b? A and b are whole numbers. Remember, a and b are whole numbers, and b is not equals to 0 are called fractions. Now, this a is known as numerator and this b is known as denominator. Now, moving on, if we talk about example of fraction, that is 2 upon 7, 5 upon 9, 3 upon 11, these all are fractions. Now, we have next number is rational number. Okay, rational number is we are going to use in this chapter rational number. So, definition of rational number is that any number that can be expressed in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equals to 0, are called rational numbers. Now, again this definition looks like definition of fraction. फ्रैक्शन के डेफिनेशन में भी देखा कि सेम यही डेफिनेशन था, वहां भी नंबर्स को p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। हालांकि मैंने वहां पे 1 बाई a बाई b लिखा था, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता है। और वहां पे भी क्राइटेरिया था कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में? डिफरेंस क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शंस and rational numbers? Now, in case of fractions, numerator and denominator are whole numbers, but in case of rational number, numerator and denominators are integers. This is the basic difference between fraction and rational number. And the second criteria, that denominator is not equals to 0, is same for both fractions and rational number. Now, the question comes here, why q is not equals to 0? Means denominator should not be equals to 0. रेशनल नंबर के केस में भी और फ्रैक्शन के केस में भी हम लोगों ने देखा कि ये 0 क्यों नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि p एंड q आर इंटीजर्स। तो हमें तो पता है कि 0 इंटीजर्स है, और सेम फ्रैक्शन के केस में लिखा हुआ था कि a एंड b आर होल नंबर्स और 0 भी होल नंबर है। तो फिर 0 पॉसिबल क्यों नहीं है डिनोमिनेटर में? बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट डिफाइंड इट। if I ask you divide number 6 with 0, can you divide this number with 0? No, because division by 0 is not possible. That's why this second criteria is here, that denominator should not be equals to 0. Now moving on, the collection of rational number is represented by q. Okay, wait a second, I erase all these things. Okay, so okay, now you can see the collection of whole number is represented by q. Remember these notations very carefully. Now if we talk about the example of rational number, that is 2 upon 7, minus 5 upon 9, 3 upon 11, 0, minus 8, and these all are rational numbers. Now here comes the question, from this example we can say rational number are classified into three parts, that is positive rational number, negative rational number, and 0. Remember, 0 is neither negative nor positive rational number. Now all positive rational numbers are fractions. Remember, all fractions are rational numbers, but all rational numbers are not fraction. मतलब जितने भी फ्रैक्शन हैं वो सारे रेशनल नंबर होंगे। और किस टाइप के रेशनल नंबर होंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर। बट अगर हम लोग बोले कि सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन होंगे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं -5/9। अब यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है? -5, बट फ्रैक्शन की कंडीशन क्या थी? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी होल नंबर, और -5 तो होल नंबर है नहीं, ये तो इंटीजर है। इस कारण से ये फ्रैक्शन के अंदर नहीं आएगा, ये किसके अंदर आएगा? रेशनल नंबर के अंदर।
अब एक डायग्राम की बात हम लोग और करते हैं। इंटीजर में हम लोगों ने एक डायग्राम देखा था, अब हम लोग एक डायग्राम रेशनल नंबर में भी देखते हैं। ओके, इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं कि रेशनल नंबर के अंदर कौन कौन आ रहे हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, देन वी हैव डेसिमल एंड देन वी हैव फ्रैक्शन। अब यहाँ से हमें इस डायग्राम से यही चीजें याद रखनी है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे क्या हैं, रेशनल नंबर है। जितने भी होल नंबर है वो भी रेशनल नंबर है। जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे रेशनल नंबर है। जितने भी फ्रैक्शन है वो सारे रेशनल नंबर है। जितने भी डेसिमल है वो सारे रेशनल नंबर है। ओके, आई होप now you understand what I am saying through this diagram. अगर इसके जस्ट अपोजिट की बात करें कि क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स हैं, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, ये याद रखना है इस डायग्राम में, जब भी हम लोग डायग्राम से नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे कुछ इस तरीके से, तो वो पॉसिबल रहेगा। लेकिन इस डायग्राम में अगर मैं बोलूँ ऊपर से नीचे की तरफ आप मूव करो तो वो पॉसिबल नहीं है। आप चलो इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो ये इंडिया है, ठीक है, ये मान लो आप इंडिया है। अब इस इंडिया के अंदर मैंने एक छोटा सा पार्ट बना दिया राजस्थान का। तो राजस्थान में जितने भी पर्सन है वो क्या है, इंडियन है, ठीक है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट मैं बोल रहा हूँ कि क्या सारे इंडियन राजस्थान के हैं, नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। इंडिया के अंदर और भी स्टेट्स है। तो सेम एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, ये आपको समझना पड़ेगा डायग्राम के थ्रू कि जितने भी रेशनल नंबर्स हैं वो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। सारे सारे रेशनल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जितने भी नेचुरल नंबर है वो रेशनल नंबर के होते हैं। आई होप इस डायग्राम से और इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग ऑन, we have some question, let's discuss that questions first. Okay, first question, and now questions are based on some statement and we have to verify that these statements are true or false, and we have to give reasons also for our answers. Now first question is, every whole number is a natural number, is it possible? No, I told you earlier, every whole number is not a natural number because 0 is a whole number but not a natural number. And these are the questions from NCERT. Okay, now we have every integer is a rational number. Yes, it is true because every integer m. Now m is any integer that can be positive integer or negative integer or 0, anything can be expressed in the form of m by 1. Okay, so it is a rational number. Now we have every rational number is an integer. Okay. तो ये फॉल्स होगा। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप हालांकि ऐसे नहीं रटेंगे उस चीज को कि ऊपर से हम लोग नीचे आ रहे हैं, मैंने वो समझाने के लिए बताया। लेकिन आपको बस उस डायग्राम को ध्यान में रखना है कि कैसे वो वर्क कर रहा है, कि जितने भी रेशनल नंबर है वो इंटीजर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, ये मैंने वहां पे भी समझाया था, यहाँ पे भी आप देख लीजिए। ये जितने भी है ये सारे रेशनल नंबर तो हैं, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, ये सारे फ्रैक्शंस भी हैं। ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q? क्या आप इसको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0? इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? यस, 0 एक रेशनल नंबर है, ये तो आप पहले से ही जानते हैं कि मैंने अभी बताया भी था, जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे रेशनल नंबर के अंदर आएंगे। और 0 क्या है अपना स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो ये तो होगा रेशनल नंबर। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट है क्वेश्चन में, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q? ऑब्वियसली लिख सकते हैं इसको। कैसे लिख सकते हैं p अपॉन q के फॉर्म में? जैसे 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 9 एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। Remember, I told you division by 0 is not possible, but if you have to divide 0 by any number, then it is possible. Here we are dividing 0 by 1. Now, in this case, we are dividing 0 by 9. Now, it is possible. Although, in both cases, our result will be 0. Okay? But our criteria satisfy here that numerator and denominator should be integer. Now you can see 0 and 1 both are integers, and second criteria is that denominator is not equals to 0. Now you can see here denominators are not equals to 0. Next, again we have some true false statement question.
So we will look about these questions one by one. Now every whole number is a natural number. Is it possible? No, not possible. Although I take took this question earlier. Okay. Next, every integer is a whole number. Again, this is false. In diagram of integer, I told you when we are moving from up to down, then statement will not true. Okay. तो ये false है, क्यों false है? Because -5, -6 ये सारे integers हैं, लेकिन ये whole numbers नहीं है. दूसरा, every rational number is a whole number. तो ये भी false है. ये भी मैंने अभी बताया कि जितने भी रेशनल नंबर है वो सारे होल नंबर है, तो ये पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दे रखे हैं. ये सारे रेशनल नंबर हैं लेकिन ये होल नंबर्स नहीं है. आई होप अभी तक जितने भी डेफिनेशन थे रेशनल नंबर के, उसके थ्रू जितने भी एनसीईआरटी के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे ट्रू हो रहा है, कैसे फॉल्स हो रहा है. अब हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक के लिए. नया टॉपिक है टू फाइंड आउट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर. सॉरी, यहाँ पे मैं नंबर लिखना भूल गया. रिमेम्बर, ये एस नहीं होगा. टू रेशनल नंबर्स. ओके. दो रेशनल नंबर के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है. अब सपोज अपने पास मैंने एक नंबर बोल दिया आपको 5 और 6. नहीं, 5 और 6 रहने दे, पहले हम लोग 5 और 8 की बात करते हैं. अब मैं पूछूं कि इन दो 5 और 8 के बीच में कोई दो नंबर बता दो आप मुझे, तो ये तो तुरंत बता दोगे. कौन कौन से दो नंबर? 6 एंड 7. ओके, दीज टू नंबर्स आर बिटवीन 5 एंड 8. अगर मैं बोलूं कि 5 और 6 के बीच में मुझे कोई दो नंबर बता दो, तो यहाँ सोचने लग जाओगे. तो यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है. इनके बीच में जो भी नंबर्स हैं, या तो वो फ्रैक्शन है, या डेसिमल है, या रेशनल नंबर है. ओके, तो जितने भी इंटीजर्स हैं उनके बीच में नॉन इंटीजर्स नंबर होते हैं, जिनको हम लोग या तो फ्रैक्शन बोलेंगे, या फिर डेसिमल, या रेशनल नंबर. तो हम लोग देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे दो रेशनल नंबर को. वेट अ सेकंड, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ इन चीजों को. Okay, moving on. Okay, so first method we have is mid-value method. So what does mid-value method says? If R and S be two rational numbers, means R and S दो rational number हैं, और एक criteria है कि R is smaller than S, then अब इस चीज से एक इक्वेशन प्रूव होता है. मैं पूरा इक्वेशन का डेरिवेशन करके बता दूं कैसे होता है. आपको रटना नहीं है फॉर्मूले को डायरेक्ट, आपको समझना है कि वो वैल्यू आई कैसे. ओके, तो क्या दे रखा है? फर्स्ट क्राइटेरिया, आर इज स्मॉलर देन एस. नाउ एड आर इन बोथ हैंड साइड, मींस इन एलएचएस एंड आरएचएस. सो इन एलएचएस वी आर एडिंग आर, and in RHS we are adding R, and these R and S already exist. Now these two R and R will become 2R, and this is R plus S. Now 2 is in multiplication. When we transpose this 2 in right hand side, it will goes into denominator. Now from this we know that R is smaller than R plus S upon 2. Now next we are taking again this case, since R is smaller than S. Now in this first case we are adding R in both side. Now we are adding S in both side. So first we are adding, again we are adding S in both side. अब ये R plus तो S ही रहेगा, और ये S plus S मिलकर क्या हो गया? 2S. Now this 2 is in multiplication. ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है. जब इसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये किस में आ जाएगा? डिवीजन में. तो ये डिवीजन में आ गया R plus S by 2 into S. एक मिनट. ओके, तो आप देख सकते हैं क्लियर. अब यहां से हमें एक और कंडीशन मिल गया कि R plus S by 2 है, ये S से स्मॉलर है. यहाँ क्या मिला था क्राइटेरिया कि R जो है वो R plus S by 2 से स्मॉलर है, और यहाँ पे R plus S by 2 S से स्मॉलर है. तो यहाँ से क्या मिले हमें कंक्लूजन कि
आर प्लस एस बाई टू ये लाई करेगा किसके बीच में, आर एंड एस के बीच में। तो यही फॉर्मूला होता है जब भी हमें दो रेशनल नंबर के बीच में मिड वैल्यू मेथड या सिर्फ एक रेशनल नंबर निकालना हो तो इसका हम लोग मेनली यूज करते हैं। जब दो रेशनल नंबर के बीच में मुझे निकालना है एक रेशनल नंबर, तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि आर एंड एस के बीच में फर्स्ट रेशनल नंबर कौन सा होगा, आर प्लस एस बाई टू। इसको हम लोग एवरेज मेथड भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग एवरेज ही तो निकाल रहे हैं। Remember, this method we are using in finding one rational number, or we can find more than one rational number using this method, but that will become hectic for you. So I prefer use mid value method or average method only. You have to find only one rational number between two rational number. अगर एक से ज़्यादा रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मैं दूसरे मेथड्स की बात करूंगा, वो आप यूज करेंगे। ओके तो ये आपको याद रखना है कि ये क्यों होता है ऐसे। ये आपको ऐसे बस रट नहीं लेना है कि आर प्लस एस बाई अपॉन टू ही क्यों लिख दिया हम लोगों ने, डायरेक्ट ये क्यों कर दिया, तो इसको रटना नहीं है। मैंने सारा मेथड के थ्रू समझा दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ हम लोग क्वेश्चन के थ्रू मूव करते हैं। तो मिड वैल्यू मेथड यही बोलता था कि अगर r इज स्मॉलर देन s देन r प्लस s बाई टू लाइज बिटवीन r एंड s। Now we have a question, find a rational number between 3 and 4. Now what you have to do, we know that r plus s upon 2 is between r and s. Therefore a rational number between 3 and 4 is 3 plus 4 upon 2, that is 7 upon 2. Now this 7 upon 2 is the rational number that exists between 3 and 4. Okay? अब आपको समझ में आ गया कि जब भी हमें एक रेशनल नंबर निकालना है दो रेशनल नंबर के बीच में तो हम लोग मिड वैल्यू मेथड का यूज करेंगे, और एक क्वेश्चन भी मैंने इस पे समझा दिया। अब मूव करते हैं दूसरे मेथड की तरफ। ओके, सेकंड मेथड सेज व्हेन डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, क्या बोल रहे सेकंड, एंड न्यूमरेटर्स हैव अ गैप। गैप का मतलब न्यूमरेटर के बीच में कुछ डिफरेंस होगा। जैसे मान लो 5 है न्यूमरेटर और दूसरा न्यूमरेटर 9 है, तो इसके बीच में हम लोग गैप देख रहे हैं, कितना गैप है, 3 का गैप है। ओके चलो देखो, अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 4/7। नाउ वी कैन डायरेक्टली से दैट 1/7 के बाद क्या आएगा, 2/7, देन फिर 3/7, देन 4/7। So we have to find two rational number, and here two rational number already exist. We do not have to do anything. हम लोग डायरेक्ट देख रहे हैं कि यहाँ पे तो दो रेशनल नंबर पहले से है, तो कुछ करने की जरूरत तो है नहीं। अब डायरेक्ट लिख दो ना इसको, टू रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 4/7 इज 2/7 एंड 3/7। अब क्या हो कि अगर न्यूमरेटर्स के बीच में गैप ही ना हो, अगर डिनोमिनेटर तो इक्वल हो लेकिन न्यूमरेटर्स के बीच में कोई भी गैप नहीं हो, जैसे 1/7 एंड 2/7 आ जाए, अब तो यहाँ मैं बोलूँ कि इन दोनों के बीच में दो रेशनल नंबर निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकालेंगे उस केस में, चलिए। When denominators are not equal and numerator have no gap, तो यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं वही जो मैंने भी बोला था, 1/7 एंड 2/7 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो क्या करना है, सिंस वी नीड 3 रेशनल नंबर, सो वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3 + 1, दैट इज विथ 4। तो जब भी हमें दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालना है और दोनों ही रेशनल नंबर जो दे रखा है उनका डिनोमिनेटर इक्वल है, तो उस केस में अगर न्यूमरेटर में गैप नहीं है तो सबसे पहले चेक करो कि क्या चेक करना है, कितने रेशनल नंबर निकालने, कितने निकालने, 3। अब 3 में एक ऐड कर दो, जितने भी निकालने हैं ना उसमें एक ऐड कर दो, तो हम लोगों ने एक ऐड कर दिया 4, उस 4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर देते 1/7 में से 4 में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, यहाँ भी 2/7 में मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने 4 से, बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब ये अब जरूरी नहीं कि 4 से मल्टीप्लाई करो, अगर आप इस मेथड का यूज करोगे तो आपके पास एग्जैक्टली उतने ही रेशनल नंबर आ जाएंगे उन दो रेशनल नंबर के बीच में जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम लोग इस नंबर का यूज कर रहे हैं। आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप 10 से कर लो, 100 से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर इस 4 से करते हो, अगर ऐसे करोगे तो हमारे पास एग्जैक्टली उतने ही रेशनल नंबर आ जाएंगे। ओके, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 4/28, 8/28। अब इनके बीच में 3 रेशनल नंबर कौन कौन से हो गए, सॉरी ये 4/28 नहीं होगा, ये मैंने गलत लिख रखा है, यहाँ पे क्या आएगा 7/28। तो these are the 3 rational number that exist between or that lie between
1/7 एंड 2/7। अब रेशनल नंबर की एक बेसिक डेफिनेशन ये है कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो अब यहाँ पे 5/28 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, 6/28 सिंपलेस्ट फॉर्म में है नहीं है, 7/28 भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना, मैंने यहाँ पे नहीं कर रखा है, मैं आगे किसी क्वेश्चन में कर रखा हूँ। आप जब भी रेशनल नंबर को एक्सप्रेस करोगे तो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3/14। सो नेक्स्ट स्टेप में आप ये लिखोगे 5/28 फिर 3/14 और यहाँ पे 1/4। ओके, तो तीन रेशनल नंबर कौन कौन से? 5/28, 3/14 एंड 1/4, दैट इज बिटवीन 1/7 and 2/7. Now moving on, in both cases we have seen denominators are equal, but what when denominators are not equal? जब denominator equal नहीं होंगे तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, चलो देखते हैं उसको। ओके, सो यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड थ्री रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 and 2/3. Now you can clearly see the denominator of both rational number are different. Now what you have to do, since denominator are not equal, so first equal the denominator. And how will you do equal the denominator? By changing them into equivalent rational number. आपको क्या करना है, रेशनल नंबर को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब ये करते कैसे, हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ेगा। सो एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6. नाउ वी हैव टू मेक डिनोमिनेटर एज 6। हमें डिनोमिनेटर क्या बनाना है, 6। तो क्या करेंगे, 1/3 में, सॉरी 1/2 था, अब 2 में को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, इसलिए हम लोगों ने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया। रिमेंबर, सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके नहीं छोड़ देना है, आपको न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वाले। ये आप देख सकते हो ना, ये कट जाएंगे 3 और 3, तो ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएंगे। इस कारण से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वेट अ सेकंड, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो सेम ये कंडीशन दूसरे वाले रेशनल नंबर में भी आपको अप्लाई करना है। 2/3 था, अब हमें डिनोमिनेटर 6 बनाना है, मतलब 3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। अब 2 से जब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी हैव 3/6 एंड 4/6। तो अपने पास ये रेशनल नंबर आ गया 3/6 एंड 4/6। अब इनके बीच में तो हम लोगों को दिख रहा है कोई गैप ही नहीं है, डिनोमिनेटर तो इक्वल हो गया लेकिन गैप ही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं हमें, 3, मतलब 3 + 1 दैट इज 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिंस देयर इज नो गैप इन द न्यूमरेटर, so we have to multiply the rational number by 3 + 1 that is 4. So we need, as we need 3 rational number, मैंने पहले भी आपको बताया जरूरी नहीं है कि आप 4 से ही मल्टीप्लाई करो, आप किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करके उनके बीच में एनफ गैप क्रिएट कर सकते हो ताकि आप 3 रेशनल नंबर आसानी से फाइंड आउट कर सको। जरूरी नहीं है, इस मेथड का यूज करोगे तो आपको एग्जैक्टली उतने ही रेशनल नंबर मिल जाएंगे जितने हमें चाहिए। But remember, there are infinite number of rational number between two rational number. दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स हैं। ओके, सो हम लोग यहाँ पे इस 3/6 और 4/6 में किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से। सो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, दोनों ही रेशनल नंबर में। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गॉट 12/24, then we have 16/24. Now the three rational number between 12/24 and 16/24 is 13/24, 14/24 and 15/24. Now again I told you in the previous question कि हमें रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो नहीं है, 13/24 तो है लेकिन 14/24 नहीं है, 15/24 नहीं है, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 7 और ये 2 से डिवाइड होगा तो 12। ठीक है, मैं आगे वाले स्लाइड में आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने डिवाइड करके लिख रखा है 13/24 इक्वल्स टू 7/12 फिर देन 5/8। अब यहाँ किससे डिवाइड किया है, 3 से, तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ 24 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8। आई होप अब आपको समझ में आ गया है कि रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करने हैं।
हमेशा आप इस मेथड को प्रेफर करें। ये मेथड आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ही इजीली इससे आप रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रीवियस क्लासेज में भी आपने इस मेथड का यूज करके रेशनल नंबर्स फाइंड आउट किए हैं। ओके, moving on, we have one more type of question. Find 6 rational number between 3 and 4. हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन देखा था अभी कि 3 एंड 4 के बीच में मैंने बोला था एक रेशनल नंबर निकालो, तो वहां पे हम लोगों ने मिड वैल्यू मेथड यूज कर लिया था और उसको निकाल लिया था। बट यहाँ तो मिड वैल्यू मेथड अप्लाई करने से सिर्फ एक मिलेगा, और फिर अगेन दूसरा यूज करें हम लोग, मिड वैल्यू मेथड को ही कंटिन्यू करें तो हमारे लिए काफी बड़ा हो जाएगा। इस केस को भी हम लोग पुराने क्वेश्चन जैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 3/3 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/1। सेम 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4/1। मतलब इनके डिनोमिनेटर्स तो इक्वल ही है ना, तो हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। हमें क्या करना है, हमें 6 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम लोग 6 + 1 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो नाउ हियर यू कैन सी, अब यहाँ पे मैंने लिख नहीं रखा है 1 को, बट ये आपका ऑटो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मैंने दोनों जगह ही 1 नहीं लिख रखा है। ओके, नाउ so 3 is written as 3/1. Now you are multiplying both numerator and denominator with 7. After multiplication we got 21/7, and here we got 28/7. Now we can easily find 6 rational numbers between 3 and 4, that are 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, and 27/7. Now all these rational numbers are already in simplest form or in standard form. You do not need to do anything extra. So I hope अब आप समझ गए होंगे कि rational numbers कैसे निकालने हैं। Okay, that's it from today's session. If you have any doubt regarding this session or regarding these topics, you can write in the comment box. I will try to solve your doubt, and thank you for watching this video. If you like the content and way of studying, then subscribe, like, and share this channel. Thank you. See you in the next session.